Okay, assalamu alaikum everyone. Today we're going to start matrices and determinants. From an NET perspective, it's a very straightforward chapter. आपको इसके long आते थे first year में majority shorts and longs, तो MCQ के हिसाब से काफ़ी आसान chapter है. तो मैं बताता चलूँ एक matrix होता क्या है. A matrix is just a rectangular method to write down numbers. They make computation easier for computers. Its order is given by rows x columns. For example, in this matrix A, B, C, D, it's a 2 by 2 matrix because it has 2 rows and 2 columns. अब आपको एक MCQ की टाइप बताता चलता हूँ. इस तरह का MCQ ज़रूर रहेगा कि आपको एक मैट्रिक्स दिया होगा और आपको बताया होगा कि इसकी टाइप बताएं. तो मैं थोड़ी बहुत मेजर टाइप्स बताता चलता हूँ. इसके अलावा जितनी भी टाइप्स हैं वो आप लोगों की बुक्स में लिखी हैं, तो आई वुड एडवाइज़ कि आप उन लोगों का रट्टा लगा लें. तो सब मेजर टाइप्स आर के रो मैट्रिक्स विच इज़ ओनली वन रो, कॉलम मैट्रिक्स विच इज़ ओनली वन कॉलम, null matrix which is all zeros, it is also known as a zero matrix. उसके अलावा square and rectangular matrix. Square matrix is one in which the rows and columns are equal in number, and a rectangular matrix is one in which the rows and columns are not equal in number. उसके बाद हमारे पास हो गया identity matrix, or also known as a unit matrix, in which all the diagonal elements are one. And lastly, we have an empty matrix. In empty matrix, we don't have zeros or anything. We have just square brackets with nothing inside of them. Since this first video is just a recap, so now I'm going to be going over some basic operations with matrices. First of all, we have addition or subtraction of two matrices. In this, we're going to simply add and subtract the corresponding entries. इसके लिए आपका order of both matrices का equal होना ज़रूरी है, ठीक होगा. Then we have multiplication of matrices. अब multiplication of matrices के लिए the number of columns of matrix A should be equal to the number of rows of the matrix B, ठीक होगा. और होता ये कि फॉर एग्जांपल हम वही देख लें ABCD वाला एक मैट्रिक्स, EFGH वाला दूसरा मैट्रिक्स. तो उसको मल्टीप्लाई करने के लिए पहले हमने पहले मैट्रिक्स की रो को दूसरे मैट्रिक्स के कॉलम से मल्टीप्लाई करके सम कर देना. दैट्स योर फर्स्ट एंट्री. देन फर्स्ट रो विद सेकंड कॉलम ऑफ द सेकंड मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करके ऐड कर देना. दैट इज योर सेकंड एंट्री एंड सो ऑन. दैट इज मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिसेस. एंड कीप इन माइंड AB डज नॉट इक्वल BA. दिस इज नॉट एन एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, ठीक होगा. Now we have transpose of a matrix. A transpose of a matrix is when you simply exchange the rows with the columns. So if you have a matrix 1, 2, 3, 4, 5, 6, then 1, 2, 3 is the first row. We're going to write that in the form of a column. And 4, 5, 6 is the second row. We're going to write that in the form of a column. And that is simply the transpose of a matrix. ओके, अब हम NET के हिसाब से अगर देखें तो आपको मल्टीपल टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस आएंगे. पहला ये होगा कि आपने डिटर्मिनेंट फाइंड करना है, दूसरा होगा आपने एडजॉइंट फाइंड करना है, तीसरा होगा आपने इन्वर्स फाइंड करना है, चौथा ये हो सकता है कि आपको कोई वेरिएबल गिवन है इनसाइड द मैट्रिक्स एंड यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ दैट वेरिएबल. तो आपको बताया होगा कि इज इट अ सिंगुलर मैट्रिक्स और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स. तो इस तरह के तमाम क्वेश्चन होंगे. हम इनको डिवाइड करने के लिए हमें पहले एक 2 by 2 मैट्रिक्स को डिस्कस करेंगे, एंड देन इन द नेक्स्ट वीडियो वी गोना डिस्कस ए 3 by 3 मैट्रिक्स और उसके ऑपरेशंस. तो पहली चीज़ एक डिटर्मिनेंट क्या होता है. डिटर्मिनेंट के लिए हमारे पास स्ट्रेट लाइंस अराउंड दी मैट्रिक्स आती हैं एंड वी रिमूव दी स्क्वायर ब्रैकेट्स. एंड इन अ 2 by 2 मैट्रिक्स वी मल्टीप्लाई द डायगोनल, देन नेगेटिव साइन, एंड देन मल्टीप्लाई द राइट साइड डायगोनल. And then we have an adjoint of a 2 by 2 matrix. It is represented by ADJ of matrix A. And उसमें करने के लिए we interchange the diagonal, the left side diagonal, and we apply negative sign to the right side diagonal. अब इन्वर्स का क्या फॉर्मूला होता है. इन्वर्स का फॉर्मूला इज कॉमन फॉर 2 by 2 and 3 by 3 मैट्रिक्स, एंड इट इज गिवन बाय adjoint of A over determinant of A. And this actually shows A raised to power -1. दिस माइट हैव मेड यू रियलाइज़ कि मैंने लास्ट स्लाइड में आप लोगों को ये नहीं बताया था कि अगर मैट्रिसेस डिवाइड हो रहे हैं तो क्या करना है. तो इसकी रीज़न इज़ बिकॉज फॉर डिवीजन वी नीड द इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स. तो अगर हमारे पास A डिवाइडेड बाय B है, A over B, then it is equal to A into B inverse. ठीक है, that's the relation. That's it for 2 by 2 matrices. Now we're going to discuss 3 by 3 matrices in the next video.